قانون الگ کیوں چاہتا ہے، اپنا قرآن الگ کیوں پڑھتا ہے، اپنی مسجدیں الگ کیوں بناتا ہے؟ یہ مل جل کر ملی جلی تہذیب کے اندر کیا یہ رہ نہیں سکتا؟ وہ عیسائی ٹیچر، وہ کانوینٹ کے ٹیچر جو ایک ساکھ باہر 10 روپے میں بکتا ہے، یہ 50-60 روپے کے اندر بیچتے ہیں۔ وہ بک جو باہر میں 9 روپے میں بکتی ہے، یہ جو ہے 30-40 روپے کے اندر بیچتے ہیں۔ لیکن جب جو ہے برتھ ڈے کی بات آتی ہے تو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ بچوں تم میں سے کسی کا برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ خواہ کہہ دیتا ہے ہاں آج میرا برتھ ڈے ہے، 3 جون کو میرا برتھ ڈے ہے، ٹیچر خود جو ہے ہیڈ مسز کے کمرے سے چاکلیٹ منگاتی ہے اور تمام بچوں کو کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جائے، چاکلیٹ تقسیم کرتی ہے تاکہ اس کے خون کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مسلمان برتھ ڈے بھی منائیں، مسلمان برتھ ڈے کی خوشیاں منائیں، مسلمان چاکلیٹ تقسیم کرے۔ آج مسلمانوں کی نسلوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، یہ بال کٹائی ہوئی جو پھر رہی ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے گلی کی کتیا سے بدتر ہم مقام پر آ چکی ہیں، اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہی عیسائی کانوینٹوں کی تہذیب تھی، یہی عیسائی کانوینٹوں کی تمدن تھی۔ یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کیا آقا نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ ارے زندگی کے جانے پر غم کیا جاتا ہے، دنوں کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو، اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو، اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہو، اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو۔ لیکن وہاں برتھ ڈے کی تہذیب اور تمدن اور طریقہ دے کر کیا آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکیوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، لڑکوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ اپنے خاندان کے ایک بیوہ کو پالنے کی حیثیت نہیں، اپنے خاندان کے ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں۔ یہ غریب، یہ فقیر، یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا، یہ سود کے اندر ڈوبا ہوا، یہ دن رات رشوت کی حرام کمائی کھانے والا بڑی شان کے ساتھ جورو کا برتھ ڈے بناتا ہے، کچی چولی پہن کر حرام خوروں کے مجمع میں بیوی آ کر، اس کی جو آ کر کیک کاٹتی ہے، اور دوسرے حرام خور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اسے گلے ملتے ہیں، چمٹتے ہیں، اور یہ رذیل اور یہ دیوس اس منظر کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی سے غیر مل رہے ہیں اور برتھ ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے اندر یہ تہذیب کہاں سے آئی، یہ تمدن کہاں سے آیا؟ مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی؟ کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتی تھی؟ آج سنیما خانوں میں غیر قوموں سے زیادہ برقع پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ آج سنیما خانوں میں، کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیواؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہاں سے ان کو یہ سبق ملا؟ کہاں سے ان کو یہ درس ملا؟ یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا، یہ سبق انہی کالجوں سے ملا، یہ سبق انہی کانوینٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ناچ گانا ایک کلا ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فیشن ہے۔ اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں، ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں، ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان کی نگاہ میں مسلح پر کھڑے ہونے والے امام کا کیا مقام ہے؟ تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماں باپ کا واسطہ دے کر، خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجمع کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زادہ آ جائے، فلم میں ناچنے والی کوئی رنڈی آ جائے اگر تمہارے گھر میں، تو تم کتنا خوش ہو گئے؟ کیا تم اتنی خوشی، کیا تم اتنی عزت رسول ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے نبی کے جانشین کو دیکھ کر تمہارا چہرہ خوشی سے کبھی تمتماتا ہے؟ ان چہروں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر اداسی نہیں آتی؟ تمہارے کیا پیشانی پر بل نہیں پڑتے؟ نبی کے خلیفاؤں کو دیکھ کر، نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کیا تمہارا دل سکڑتا نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں غم نہیں آتا ہے؟ کہاں سے یہ سبق ملا؟ کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناچ کو دیکھ سکتی تھی؟ آج مسلمان گھرانوں میں ہماری 17 سال کی بچیاں اور 20 سال کی جوان بچیاں ان حرامزادوں کے ناچ کو کیا خوشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور ان کے جو ہے
इसमत लूटने के मंजर को और बिछानों में सोने के मंजर को, हम बिस्तरी और मुबाशरत के मंजर को आज ये लड़कियां नहीं देख रही हैं। इनके आंखों से हया को किसने खत्म किया? इनके आंखों से शर्म को किसने खत्म किया? एक तरफ जन्म पैदा करने वाला बाप और दूसरी तरफ जन्ने वाली माँ बैठी रहती है। एक तरफ वो बाप जिसे जन्नत का दरवाजा बताया गया और एक तरफ वो माँ जिसके पैरों तले जन्नत बताई गई। ये बाप भी मौजूद है और ये माँ भी मौजूद है। एक कुमारी लड़की, बिन बियाही लड़की एक हरामजादे के नाच को देखती है, एक हरामजादे को डांस को देखती है, एक रंडी के कपड़े को देखकर अपने बाप को कहती है कि अब्बा जान मुझे ये रंडी का कपड़ा आने वाली ईद उल फितर में सिला देना, अब्बा जान मेरे बर्थडे के मौके पर सिला देना। इस हया के जनाजे को किसने निकाला? इस शर्म के जनाजे को किसने निकाला? ये बाप तो वो था कि बेटी को पैदा करने के बाद खुद वो बाप बेटी की कमर को देखना हराम था, बेटी के सीने को देखना हराम था, बेटी की पिंडली को देखना हराम था, बेटी के रान को देखना हराम था। आज ये बाप अपनी स्कूटर में इस बेटी को स्कर्ट पहनाकर कॉन्वेंट की तरफ रवा दवा होता है। मुखालिफ तरफ से हवा चलती है, वो स्कर्ट जो रान तक रहता है और घुटने तक रहता है उठता है। गली का चमार और गली का भंगी और गली का कुत्ता और गली का जाली उस बेटी की शर्मगाह को देखता है कि अंदर अंडरवियर है या नहीं, उसके रान को देखता है और खुद बाप इस मंजर को दिखा कर लेकर जाता है किसी में हिस, है किसी में शर्म, है किसी में हया। कहाँ गई वो हया जो आका हमें देकर गए थे? कहाँ गई वो हया जो हमें सिद्दीक हमें देकर गए थे? कहाँ गई वो हया फारूक हमें देकर गए थे? अमेरिका और किसी पाकिस्तान और किसी मक्का मदीना की बात नहीं, खुद इसी शहर बेंगलोर और इसी शिवाजी नगर की बात है कि जब यहाँ ऑटो रिक्शा नहीं थे, जब यहाँ टैक्सी नहीं थे, जब घोड़ों के अंदर लोग घोड़े गाड़ी में बैठा करते थे, बैल गाड़ियों में बैठा करते थे। हमारे आबा से पूछो, हमारे दादाओं से पूछो, हमारी माओं में, बहनों में, कौम की बेटियों में कितनी हया थी, कितनी गीरत थी, कितनी शर्म थी कि अगर उस घोड़े गाड़ी में बैठकर वो जो रोशनदान होता था, अगर कोई लड़की उस रोशनदान से झांक लेती, किसी गैर महरम लड़के को देख लेती, तो पूरे बेंगलोर वाले उस घर में रिश्ता नहीं मांगते थे। अरे ये तो बेहया लड़की है कि घोड़े गाड़ी में पर्दे के ओट से, वो रोशनदान से उसने बाहर झांक लिया। ये बेंगलोर का माहौल था। आज गली कोचों में अल्लाह की कसम कुत्ते और कुतियां कम जिना करते हैं, गधे और गधियां कम जिना करते हैं। इन होटलों में क्या हो रहा है, ये कैफे बार में क्या हो रहा है, ये इंटरनेट पार्लरों के अंदर ये क्या हो रहा है? ये मुस्लिम लड़कियां नहीं है, ये हया की कौम नहीं है, ये शर्म की कौम नहीं है। आपस में भरे चौक के अंदर एक कुत्ता एक कुतिया से मिलने शर्म करता है। इस भरी चौक के अंदर एक कॉलेज की लड़की, एक कॉलेज का लड़का अपना मुंह, अपना होठ दूसरे से लगाकर चूम कर वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। क्या हो गया है हमारी गीरत को? क्या हो गया है हमारी शर्म को? क्या हो गया है हमारी हया को? ये कहां से हमारी हया का जनाजा रुखसत हुआ? इन कॉन्वेंटों के अंदर लड़कों को दिया गया कि भरकर पैंट पहनना, फुल आस्तीन का शर्ट पहनना। लड़कियों को दिया गया आधी आस्तीन का शर्ट पहनना और हाफ स्कर्ट पहनना। ये मुस्तकिल मेरे भाई इस साजिश को पहचानो और इस घनौनी साजिश को पहचानो, वरना याद रखो अब्दुल करीम छागला का जो हशर हुआ, आरिफ मोहम्मद खां का जो हशर हुआ, जस्टिस हिदायतुल्लाह का जो हशर हुआ और असमत चुगताई का जो हशर हुआ, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम ये हशर ये औलाद तुम्हारे साथ करने जाएगी। असमत चुगताई, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, क्या ये पैदाइशी मुसलमान नहीं थे? बल्कि मैं आपको बताऊं कि तस्लीमा नसरीन का बाप एक आलिम था। आलिम अपनी बेटी को रंडी बना सकता था, आलिम अपनी बेटी को ईसाई बना सकता था, आलिम अपनी बेटी को यहूदियों की गोद में भेज सकता था। आलिम बिल्लाह, आरिफ बिल्लाह था तस्लीमा नसरीन का बाप। लेकिन क्या कभी उसने ये सोचा कि कॉन्वेंट में और ईसाई मिशनरीज के स्कूलों में जाने के बाद मेरी बेटी कल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पर और इज्जत पर उंगलियां उठाने वाली होगी? कल चलकर मेरी बेटी आका की अज़वाज मुतहरात, कायनात के मुसलमानों की अम्मा की आबरू और इज्जत पर उंगलियां उठाने वाली होगी? क्या इस तस्लीमा नसरीन कुतिया ने नहीं कहा था कि आका को किसने इजाजत दे दी थी कि वो और कौम के लिए 4 से बढ़कर निकाह ना करे और खुद 11-11 शादियां कर ली?
कौन थी? तस्लीमा नसरीन आलिम की बेटी थी। तुम इस फिक्र में ना रहना कि सुबह में कॉन्वेंट में भेजकर हम शाम में मकतब में मुल्ला के पास भेज रहे हैं। अरे कौन सी मुसीबत है, आग में दाखिल कर कर आग से बचाने की कोशिश की जाए, समंदर में दाखिल कर कर समंदर का पानी ना लगने की कोशिश की जाए। ये बेकार हैं कोशिशें, बेकार हैं कोशिशें। तस्लीमा नसरीन के बाप ने तुमसे ज्यादा कोशिशें की होगी, तुम तो फिर भी दाढ़ी मुड़े हो, फिर भी तुम सूदखोर हो, फिर भी रिश्वतखोर हो, फिर भी बेनमाजी हो। तस्लीमा नसरीन का खानदान आलिमाना खानदान था, बाप आलिम था। क्या उसने ये अंजाम सोचा था? क्या उसने ये अंजाम पहचाना था? क्या तुम चाहते हो कि कॉन्वेंटों में तुम्हारी पलने वाली और परवरिश पाने वाली और तालीम पाने वाली और फिर कॉल सेंटर में जाकर जिना के अड्डे के अंदर अपनी इस्मत और आबरू का सौदा करने वाली, क्या कोई जमानत दे सकता है इन मुसलमान लड़कियों के बारे में जो कच्चे लिबास पहनकर कॉल सेंटरों के अंदर रात के 2-2:30 बजे किसी गैर के साथ बैठे और वो गैर उसके जिस्म को ना छुए, किसी गैर की कैबिन के अंदर बैठे वो उसके सीने को हाथ ना लगाए? अल्लाह की कसम ये दस्तूर के खिलाफ है, ये अल्लाह के उसूल और सुन्नत के खिलाफ है कि पेट्रोल भी हो और उसमें आग भी डाली जाए और आग ना लगे। खुद हदीस कहती है कि एक मर्द और एक औरत एक तन्हाई में जमा होते हैं तो शैतान तीसरा इन दोनों में आग लगा देता है। कौन है इन कॉल सेंटरों को बदकारी का अड्डा बनाने वाली? कौन है आज गैरों के साथ भागने वाली? ये सबक कहां से उन्हें मिला? ये दर्स कहां से मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता? फातिमा और सुमैया, फातिमा के नाम से जन्नत रश किया करती थी, सुमैया के नाम से जन्नत रश किया करती थी, कुतैजा और अस्मा के नाम से जन्नत रश किया करती थी। हाय अफसोस, कौन सी मौत हम मरे। आज हमारे आंखों में वो पानी भी ना रहा कि जिस पानी में हम डूब कर मर जाएं। आज फातिमा नाम की लड़की, मैं बताता हूँ, क्या काफिरों के साथ भागकर उनके नुत्फे से वो हामिला नहीं हुई? आज सुमैया नाम की लड़की, आज कुतैजा नाम की लड़की, कहाँ गई इनकी शर्में, कहाँ गई इनकी हया, कहाँ इनको सबक मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता और इश्क का कोई मजहब नहीं होता? तुम मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो काफिर हुए तो क्या हुआ? चलो सब एक है, मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी पूजा करेगा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी कलीसा जाएगा। क्या घर घर का ये फसाना नहीं है? क्या महल्ले महल्ले का ये कजिया नहीं है? वो कौन सा महल्ला है, वो कौन सा घराना है, वो कौन सी मुसलमानों की आबादी है जहाँ हमारी माँ पहले कुंवारी लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की बात हुआ करती थी, आज शादीशुदा माएं, बच्चों की माएं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज सुबह का फैसला कि एक मुसलमान माँ शादीशुदा साहिब औलाद गैर के साथ इश्क के अंदर मुब्तला होकर भाग गई। कहाँ से मिलते हैं ये सबक, कहाँ से मिलते हैं वो दर्स? हमने देखा था अपने पढ़ने के जमाने में जलालाबाद के अंदर मदरसा हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह का, जब जाते अपने साथियों से मिलने, वहाँ गांव था, वहाँ देहात था, वहाँ पाखाना उठाने के लिए जो भंगियां सुबह सवेरे आया करती थी, दिन के उजाले से पहले आती थी और रात की तारीकी में आती थी, सुबह सवेरे आ जाया फजर की नमाज के आसपास आ जाती थी। अल्लाह की कसम, जलालाबाद और मुजफ्फरनगर का कोई वासी और कोई बाशिंदा उन पाखाना उठाने वाली भंगियों के चेहरे को देखना चाहता तो उनके चेहरों को नहीं देख सकता था। भंगियों के चेहरों में हया थी, उनके आंखों में शर्म थी। आज कुतैजा नाम की लड़की, आज सुमैया नाम की लड़की, आज अस्मा नाम की लड़की, वो खुद अपने बाप को कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कोई सहमत नहीं मेरे लिए दुल्हा तलाश करने की, मेरे लिए नौशा तलाश करने की। ये तहजीब इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिली, ये तहजीब, ये दर्स इनको इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिला।